Hello guys and welcome back to the channel. Today we will be covering three concepts and an exercise. First concept is the isosceles triangle theorem. So let's start with it. Isosceles triangle theorem states that if two sides of triangle are congruent then the angles opposite to them are congruent. कि अगर आपका AB और AC congruent है then your angle ABC and angle ACB should be congruent. So first we will do a construction. What does the construction state? Construction states that there is AD bisects angle BAC 1. So what is the proof now? Proof, we know that side AB is congruent to side AC. ये आपका given है. Sorry, to prove angle ABC is congruent to angle ACB. आपको जो दो ऑपोजिट एंगल्स है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. So the next step will be we assume two triangles. Triangle in triangle ADB and triangle ADC. In triangle ADB and triangle ADC. So angle BAD is congruent to angle CAD. ये आपका गिवन है. क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है. दैट्स व्हाई. या आप इसको रीजन में आप कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो. इट्स बेटर टू राइट कंस्ट्रक्शन बिकॉज आपने खुद से किया. नेक्स्ट इज योर साइड AB is congruent to side AC. ये आपका साइड जो है आपका गिवन. नेक्स्ट इज साइड AD is congruent to side AD. Why? Because common side. आपका एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड. दो साइड्स के बीच में एक एंगल पेयर कॉन्ग्रुएंट हो गया. देयरफॉर ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC. तो इनडायरेक्टली देयरफॉर ये किससे हो गया? SAS टेस्ट. तो आपका एंगल ABD is congruent to angle ACD by CACD, corresponding angles of congruent triangles. आपका ये और ये एंगल congruent है तो therefore angle ABC is congruent to angle ACB. Hence proof. Take a good look at this one and then we will solve the other two properties. So the next concept is 30, 60, 90 and 45, 45, 90 property. What is the property of 30, 60, 90 triangle? Let's just make a triangle of a right angle triangle. ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका 90. This is your 30, this is your 60 degree. आपका 30, 60, 90
थ्योरम या प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका कोई भी साइड, फर्स्ट जो है आपका, एक है आपका ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी, एंड नेक्स्ट इज बी सी इज इक्वल्स टू √3/2 of AC. What is the difference? Yeah, what does it state? AB is equals to half of AC. If the acute angles of a right angle triangle are of measure 30 degree and 60 degree, the length of the side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse. 30 पे क्या आता है आपका? Side opposite to 30 degree, side opposite to 60 degree. यहाँ पे आपका 30। आपको दिया है कि अगर कोई भी एक 30 डिग्री के एंगल के अपोजिट एक साइड है तो उस साइड का लेंथ हाइपोटेन्यूस से हाफ होगा। हाइपोटेन्यूस आपका ऐसी है, साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 of hypotenuse. Side opposite to 60 degree is BC. BC is equals to √3/2 of hypotenuse. मतलब अगर आपको हाइपोटेन्यूस की लेंथ पता है तो और आपको बाकी दो साइड्स फाइंड आउट करना है और आपको उसका साइड एंगल्स का मेजरमेंट पता है तो आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या थ्योरम को देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट यू हैव 45, 45, 90. What is 45, 45, 90? It's similar to this but concept is different. आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90, ये आपका 45 और ये भी आपका 45। आपका समझो ये है P Q R. What does 45, 45, 90 state? If the measure of angles are of 45 degree and 90 degree, then length of each side containing the right angle is half of hypotenuse. ये आपका हाइपोटेन्यूस है, मतलब PQ is equals to, sorry, not half, 1/√2, 1/√2 of PR, and QR is equals to 1/√2 of PR. कि अगर आपके कोई भी ट्रायंगल का मेजरमेंट 45 डिग्री, 90 डिग्री का है तो दो साइड्स जो 90 डिग्री बना रहे हैं, जो आपका PQ है और QR है, उन दोनों की वैल्यू हाइपोटेन्यूस से 1/√2 टाइम्स होगी। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस, साइड्स अपोजिट टू 45, 45 इज 1/√2 ऑफ hypotenuse. Take a good look at this one. We will then solve or explain the concept of median hypotenuse relation. Next is your median property of median drawn on hypotenuse of right angle triangle. Okay, so you have a right angle triangle. ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C. आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है, यहाँ से आप एक मीडियन बनाते हो। अगर मीडियन क्या करता है, आपका समझो ये D है तो आपके AD और DC को बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। So what does it state? It states that in a right angle triangle the length of the median of hypotenuse is half the length of hypotenuse. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जब कोई भी एक मीडियन आप ड्रॉ कर रहे हो हाइपोटेन्यूस पे, तो उस मीडियन की लेंथ वैल्यू इस हाइपोटेन्यूस में हाफ होगी। BD is equals to half of AC. This is one thing. So this you have to remember. तो आपको एक प्रूफ है जो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, क्योंकि इन दोनों के प्रूफ्स
थोड़े से हार्ड है अंडरस्टैंड करना। फिलहाल प्रैक्टिस सेट के लिए आप याद रखो कि आपको क्या याद रखना है कि मीडियन प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर आप कोई मीडियन बना रहे हो हाइपोटेन्यूज पे, अगर आप कोई हाइपोटेन्यूज पे मीडियन बना रहे हो तो उस मीडियन की लेंथ, उस मीडियन की जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज की आधी होगी, हाइपोटेन्यूज से हाफ होगी। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। Practice set 3.3. First question. Find the values of x and y using the information in figure 3.37. You have this figure जिसमें this side is equal to this side, ये आपका 50 डिग्री का एंगल है, ये आपको फाइंड आउट करना है। this side is equal to this side, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है और ये आपको फाइंड आउट करना है। यू हैव ए बी सी डी। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मेजर एंगल। टू फाइंड मेजर एंगल ए बी डी एंड मेजर एंगल ए सी डी। बहुत सिंपल है। फर्स्ट सॉल्यूशन, in triangle ABC, side AB is congruent to side AC, side AB is congruent to side AC, ये आपका गिवन है। तो इनडायरेक्टली आपका एंगल ABC is congruent to angle ACB by isosceles triangle theorem. Therefore, angle ABC is equals to 50 डिग्री आ गया आपको, ये हो गया आपका एक। फिर इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल अभी, इन ट्राइंगल DBC, साइड DB is congruent to side DC, ये भी आपका गिवन है। Therefore, angle DBC is congruent to angle DCB। क्यों? Isosceles triangle theorem। Therefore, आपका एंगल DCB कितना आएगा? 60 डिग्री। ये हो गया। एंगल ABD की वैल्यू क्या होगी? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब एंगल ABC प्लस एंगल DBC विच इज 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री विच इज 110 डिग्री। ये हो गया एक एंगल। फिर आपका एंगल ACD क्या होगा? एंगल ACB प्लस एंगल DCB विच इज अगेन 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री विच इज 110 डिग्री। आपने ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल पे दोनों पे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लगाया और उससे पहले छोटे छोटे जो एंगल्स थे उनकी वैल्यू निकाली। फिर उन दोनों छोटे एंगल्स को ऐड करके आपने बड़े वाले एंगल की वैल्यू निकाली, जिससे आपको मेजर एंगल ABD और मेजर एंगल ACD की वैल्यू मिल गई। टेक अ गुड लुक एट दिस वन। So the second question is find the length of hypotenuse of a right angled triangle. Sorry, the length of the hypotenuse of right angled triangle is 15. Find the length of the median of hypotenuse. अब hypotenuse और median की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर मीडियन कोई मीडियन बनता है हाइपोटेन्यूज पे तो उस मीडियन की लेंथ हाइपोटेन्यूज की लेंथ से हाफ होती है। अब सॉल्यूशन लिखोगे बाय मीडियन प्रॉपर्टी फॉर hypotenuse, length of median is equal to
हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस कितनी है, इट्स जस्ट रिटन 15, सो हाफ इंटू 15 विच इज 7.5 यूनिट्स। आपने मीडियन और हाइपोटेन्यूस वाली प्रॉपर्टी लगा ली और आपका आंसर आया 7.5 units. Take a good look at this one. So the third question, in triangle PQR, angle Q is equals to 90 degree, PQ is equals to 12, PR is equal to 5, and QS is median. We have to find the length of QS. मीडियन की लेंथ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको हाइपोटेन्यूस की लेंथ पता है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस की लेंथ पता करेंगे। इन ट्राइंगल PQR, angle Q is equals to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, PQ square plus QR square is equals to PR square. PQ square क्या होगा, 5 square plus QR कितना है, 12 square is equals to PR square. तो ये हो गया आपका PR square is equals to 5 का square, 25, 12 का square 144, which is 169. 169 is square root of 13, therefore PR is equals to 13 units. PR is equal to 13 units. आपको इसकी लेंथ आ गई 13 units. अब आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। Therefore, by median property, length of QS is equals to half into length of PR या RP जो भी आप लिखना चाहो, हाफ इंटू क्या आएगा 13 which is 6.5 units. In this sum आपको पहले हाइपोटेन्यूस नहीं पता था तो आपने थ्योरम ऑफ पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूस निकाला। हाइपोटेन्यूस पता चल गया तो मीडियन निकालना आसान हो गया, तो आपने मीडियन प्रॉपर्टी लगाई और हाइपोटेन्यूस का हाफ करके आपने मीडियन की लेंथ निकाली। Take a good look at this one and then we'll move on to the last sum of the day. Last question, the fourth question is, point G is the point of concurrence for medians PT Q, समझो S ले लो और ये आपका Y ले लो। तो QS RY और PT आपके मीडियंस है जो G पर आपके कॉन्करेंस ले, कॉन्करेंस इन द सेंस दे ऑल मीट एट पॉइंट G। पॉइंट G पे मिल रहे हैं, आपको फाइंड आउट करना है PG कितना है और पूरा PT कितना है। फर्स्ट सॉल्यूशन GT इज इक्वल टू क्या आपका 2.5. We know that G divides the median PT in 2:1। मतलब क्या, आपका जब मीडियंस कोइंसाइड होता है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों 2:1 में डिवाइड होता है। 2:1 में डिवाइड होता है मतलब क्या होता है, आपका जो आपका पर्टिकुलर मीडियन है वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है, सॉरी दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है जिसका एक साइड दूसरे का डबल है। लेट PT is equals to, sorry, let GT is equals to x. Therefore PT क्या आएगा आपका 2x। आपका छोटा वाला साइड x है तो बड़ा वाला डेफिनेटली इसके हिसाब से देखने जाओगे तो कितना होगा 2x। GT is equals to x is equals to कितना 2.5। Therefore PT is equals to 2x is equal to 2 into 2.5 which is 5.0 units। आपको बड़ा वाला साइड पता चल गया, छोटा वाला साइड पता चल गया, आपको पूरा साइड फाइंड आउट करना है। देयरफॉर लेंथ ऑफ
P PT नहीं, P G. Length of PT is equals to how much? GT plus PG, which is 5. GT is your 2.5, sorry, 2.5 plus 5, which is your 7.5 यूनिट्स. इसमें आपको 8 स्टैंडर्ड और 7 स्टैंडर्ड वाला बेसिक कॉमन लॉजिक था कि अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है तो आपका जो मीडियन है वो 2:1 के हिस्से में डिवाइड होता है. टेक अ गुड लुक एट दिस वन. थोड़ा सा डिफिकल्ट सम है क्योंकि यहाँ पे हमने छोटे वाले को x लिया है, बड़े वाले को 2x इसलिए लिया है क्योंकि छोटे वाले का वैल्यू x है तो बड़ा वाला उसका डबल है. तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे आएगा 2x. वैसे ही जैसे यहाँ पे 2.5 था तो उसका डबल यहाँ पे क्या है 5. और इन ये पूरे का निकालना था तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पूरे मीडियन का वैल्यू मिल जाएगा जो आपका कितना है 7.5. टेक अ गुड लुक एट दिस वन. ट्राई ऑल दी सम्स. बेसिकली 4 ही सम है. सब ट्राई करो एक और बार फिर से कैलकुलेट बिना देखे. इफ यू हैव एनी डाउट आस्क अस ऑन व्हाट्सएप और इन द कमेंट सेक्शन. We'll be happy solving it. Till then, take care, stay home and stay safe.